आई वॉज वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. यू नो आई मेड अ पुश कि चलो लेट्स डू इट. वैसे भी इट्स पैंडेमिक टाइम, एवरीबडी इज पोस्टिंग रैंडम थिंग्स, तो लेट मी पोस्ट दिस ना. इनिशियली ऑब्वियसली व्हेन आई स्टार्टेड मुझे लगता था कि यार लोगों को क्या लगता होगा कि ये क्या कर रही है. बट अभी मुझे लगता है कि आई एम बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अपने आप को एक पुश किया टू स्टार्ट. ऑफ सस्टेनेबिलिटी देयर इज नो पर्टिकुलर यू नो फिक्स डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी. इट्स नॉट 1 और 0 कि आप ये करोगे तो ही सस्टेनेबल हो, और इफ यू डू दिस यू आर नॉट एट ऑल सस्टेनेबल. सो सस्टेनेबिलिटी बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर पर डिपेंड करती है कि जैसे. So, welcome Pankti on the Climapreneur Show. We are finally doing this, and I'm so excited to have you here. Yes, thank you for this opportunity, Shweta. So, Pankti, like, tell me that when did your sustainability journey start? Okay, so Shweta, I belong to a Indian middle class family. So sustainability is part of my life since childhood. I have seen my when I grow up, I have seen my parents, my dadi, my nani doing this kind of practice, like buy what you need and reusing the things till the end. And even it's done wo ganda ho jata hai ya wearable nahi hota hai, then to repurpose the thing and use it somewhere. So this 5 hour or 3 hour, what we say, was part of my life since my childhood. I have seen this from my growing period. So for every Indian middle class family, or for every Indian family, sustainability is in their roots. We are not like कि कहीं जाके हमें ऐसा हुआ कि नहीं, we need to be sustainable. But for every Indian middle class family, sustainability is part of their life. It is the only way to live the life. So sustainability हमेशा मेरा एक हिस्सा ही रहा है. So, like I was saying, like when I got introduced to sustainability and climate action, all these things now, like I saw कि क्या practices होती हैं, and I was like यार ये तो हम अपने घर पर करते हैं. Like for example, my father, like I tell him always कि पापा please नई shirt ले लो, please ले लो. वो नहीं लेंगे, like he'll wear it I don't know how many times. Like I always read on internet कि wear a cloth at least 30 times, but personally the clothes I have or my father has, we have worn it even more than 50 times. More than yes, more than 2 decades. My father has a clothes which is more than 2 decades old, and he was like कि जब तुम्हारा born हुआ था ना तब का है ये. He always tells me like that कि जब तुम 2 साल की थी तब ऐसा था. Oh my God, 30 years old, 35 years old clothes he still has. So it's our part. It's in our Indian roots that we used to buy things, very quality things. We need to care for the things. We always used to care for our resources and everything we buy. So it is part of our Indian culture. Sustainability is in our roots. Pankti, like कभी आपने ऐसा सोचा था, because अभी like you attended an award function as well. Did you ever thought कि मतलब आप इन्हीं सारी practices के through और इस चीज में काम करते हुए you'll reach a platform like that? So Shweta, zero waste अड्डा का जर्नी जो मेरा है वो ऐसे शुरू हुआ ना कि like I never thought about it कि मैं ऐसा कुछ भी करूँगी, कंटेंट क्रिएशन करूँगी. So it all started in lockdown कि जब मैंने लॉकडाउन में मुझे थोड़ा टाइम मिल गया to scroll the Instagram and through scroll the social media. So I was shocked. I was so shocked to see the overconsumption. Even in the time of the pandemic, people are consuming the things. People are consuming things more than we need or more than required, and encouraging all to do so, right? So I was like, oh my God, nobody or very less people on Instagram is talking about consume less. Everybody is talking about consume this, buy this, do this, and nobody, I won't say nobody, but very less people were very less people were talking about consume less and live a very conscious life or sustainable life. So I was like, let's do it. And I was very skeptical about it when I started my journey, or when I decided कि ऐसा कुछ करते. तो I was very skeptical about it कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. So वो हमेशा हमको होता है ना कि यार everybody is consuming और मैं buy less और wear this 30 times or 50 times करूँगी, तो how people will react to my content.
It was obviously I never expected this much love from Instagram, and I never expected that I would be able to reach this much people, and this kind of sustainability will be voice of many. Yes. You know, like when you're saying that when you were starting, you had like thoughts in your head. So, like, what were the thoughts that were going inside you? Ki, matlab, what was actually like telling you कि शायद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? And how did you make your first post? And what was the kind of, did you get some engagement? And what was your reaction after the first post? यस सो इनिशियली इंस्टाग्राम पे वो जो हमारा जो नॉर्मल अकाउंट होता है जिसमें प्राइवेट अकाउंट होता है, फ्रेंड्स ही हमारे फॉलोअर्स होते हैं, तो आई मेड अ पुश कि चलो लेट्स डू इट. वैसे भी इट्स पैंडेमिक टाइम, एवरीबॉडी इज पोस्टिंग रैंडम थिंग्स, तो लेट मी पोस्ट दिस ना. उसमें क्या है दैट आई जस्ट मेड अ पुश, एंड हाउ इट स्टार्टेड कि कुछ फ्रेंड्स ने अप्रिशिएट किया कि यार दिस इज नाइस, हाँ व्हाट यू आर डूइंग इज वेरी नाइस, योर जर्नी इज वेरी नाइस. एंड देन स्लोली व्हाट हैपेंड, I started noticing that people who is not my followers started following me, and slowly धीरे धीरे they are sharing my content, है ना. इनिशियली तो वो कंटेंट जैसा कुछ वर्ड ही मुझे नहीं पता था, कि मुझे ऐसा था कि मेरी जो प्रैक्टिस, स्टिल आई डू इट, आई डोंट मेक कंटेंट, आई मेक लाइक माई प्रैक्टिसेस, आई डॉक्यूमेंट माई प्रैक्टिसेस एंड लेट पीपल नो. तो तब मुझे ध्यान ही नहीं था, एंड देन आई स्टार्टेड नोटिस कि लोग जो मुझे नहीं जानते, मैं जिनको नहीं जानती, दे स्टार्टेड फॉलोइंग मी. फिर स्लोली कभी पोस्ट पे ऐसे रैंडम लाइक्स और आने लगे, कमेंट्स आने लगे, एंड आई वाज लाइक यार हु दे आर. फिर मुझे पता चला कि यार बहुत सारे जो लोग हैं वो मेरी पोस्ट को शेयर भी कर रहे हैं, मतलब आई मीन कि लोगों को ये रेजोनेट हो रहा है ये आइडिया उनके साथ. एंड फिर स्लोली अभी ऐसा टाइम आ गया है कि नाउ पीपल स्टार्टेड कैरिंग, पीपल स्टार्टेड गिविंग मी फीडबैक, पीपल स्टार्टेड डीएम मी कि हमने ये शुरू किया है, हमने भी ये स्टेप मतलब लिया है. सो इट्स वेरी बहुत अच्छा फील होता है कि इनिशियली आई स्टार्टेड जस्ट नोटिसिंग कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, देन पीपल स्टार्टेड शेयरिंग कि भाई जिसको पसंद आए वो तो एटलीस्ट फॉलो करे. नाउ आई सी लॉट्स ऑफ पीपल कैरिंग about it. Now I see lots of people doing it. So it's a really very proud moment for me, because that is why I started. Because initially obviously when I started मुझे लगता था कि यार लोगों को क्या लगता होगा कि ये क्या कर रही है, बट अभी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अपने आप को एक पुश किया टू स्टार्ट, बिकॉज द ब्यूटीफुल कम्युनिटी आई हैव डेवलप्ड. सो इट्स नेवर अबाउट कि आप आपको करना है नहीं करना, हमेशा आप सोचते हो, बट इट्स ऑलवेज गुड थिंग टू पुश योर सेल्फ एंड स्प्रेड व्हाट यू बिलीव. So, like tell me what sustainability actually is. And I'm asking you this question because I believe sustainability is sustainable fashion. खरीदना नहीं है सिर्फ sustainable fashion. Like it's not just buying sustainable brands. So, Shweta, definition of sustainability, there is no particular, fixed definition of sustainability. It's not 1 or 0 कि आप ये करोगे तो ही sustainable हो, और if you do this, you are not at all sustainable. So, sustainability बहुत सारे different factor पर depend करती है कि जैसे in which city you live in, because my city don't have any zero waste store. So, I can't buy from zero waste store, but I try to do as much as I can, and then it's depend on the budget. Right, because someone can't afford sometimes sustainability is costly also. So like you said कि sustainable clothing बहुत costly होते हैं. तो it all depend कि आपके पास time कितना है, आपका passion कितना है, आपका determination कितना है, कि आपके पास budget कितना है, बहुत सारे factor पे वो depend करता है. But if you have a strong determination कि नहीं मुझे करना ही है, then you will find a way. उसमें फिर बजट कंस्ट्रेन और टाइम कंस्ट्रेन ये सब नहीं आता है. सो सस्टेनेबिलिटी का ऐसा कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है. इट्स सस्टेनेबिलिटी का ओनली 2 थंब रूल्स है कि कंज्यूम व्हेन यू बी माइंडफुल अबाउट योर कंजम्पशन. whatever you are consuming, whatever you are wearing, even if you can't buy sustainable clothing, buy less. Buy less. Whatever you buy less, so that's an option. So whatever you are consuming, be mindful about your consumption. And the secondary, be very conscious about the waste you generate. Be take responsibility, very responsible about your waste. Whatever you generate, try to generate it less. Even if zero waste living is not like it, a perfect zero waste life is not possible at all if you live in city. So
try to do it, try to maximize it, segregate it, send it to compost it, send it to recycling. There are lots of options nowadays that you don't need to follow everything, but yes, one step at a time. And with the strong determination you can do it. So budget and time and everything is not constrained. Just you have a determination, no, you can do it. Still, my city don't have any zero waste store, but still I find, I request people, I carry my own things, and make my own circles, and still able to shop zero waste. So it's not about budget or time you have. You just need a strong determination that okay, and you will find a way how to do it. Do you say, like find your own version of sustainability, find your own sustainable life? The way I live sustainable life, it's not possible for you to live, because you might have you have different background, you have different profession, or you have your schedule is something different than me. So it has no fixed definition कि यही करना है, but you need to find what best suits for you. And keep making, keep getting better a percent by percent every day. Yes, and that's how change happens, like, right? But otherwise, आपको anxiety हो जाएगी कि oh my God, she is Exactly. doing, she is living so perfect zero waste life, और हम तो कुछ भी नहीं करते हैं. तो फिर आप ऐसे जब एंजाइटी होती है तब आप कुछ भी शुरू नहीं कर पाते हो. No, that is right. तो वन स्टेप एट अ टाइम, बट यस, बी कंसिस्टेंट अबाउट इट, बी वेरी डिटर्मिन्ड अबाउट इट कि नहीं करना ही है. And also, I would say, like, don't compare your journey. For example, I would not like to compare my journey, but I would like to take inspiration from the other person. And that would motivate me to even do more than what I'm doing. So, Pankti, like, when you were actually like starting this journey, or when you are doing this, did you face any challenges, like from, say, your family members, for people around you? Like, were there things they were telling you? Yes, so in my journey, most challenging part was like to push myself, because yes, obviously, मम्मी कंपोस्ट देख के कह रही यार क्या कर रहे हो, मच्छर हो जाएंगे घर में. And she saw the bioenzyme, it has a white layer of yeast on bioenzyme, and she was like मत करो ऐसा. My husband was like, when for the first time I shared the idea of composting कि हमें नहीं कर, हम कंपोस्ट करेंगे, and he was like यार we are not doing this, क्या करना है, क्यों कचरा जाने दो ना. So it is like that. बट समटाइम्स कैसा है कि स्लोली लोगों को आपका फैमिली मेंबर से ये चीज़ें ऐसा हो सकता है, मतलब इट्स पॉसिबल. क्योंकि मेरे साथ हुआ, सबके साथ भी होता है कि उनको कन्विंस करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि सब अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचते हैं. नॉट एवरीबडी इज एज डिटर्मिन्ड एज यू, सो इट्स And वेरी they're not नॉर्मल. wrong. या एंड दे आर नॉट रॉन्ग, राइट? उनका परसेप्शन ऐसा नहीं है, उनका कुछ अलग है, उनका गोल ऐसा नहीं है जैसा आपका गोल है. बट स्लोली व्हेन दे सी योर determination, and slowly when they see that oh my God, waste is converted into something very beautiful, then they will start appreciating you. They will even they will start helping you, and they will start praising you. So slowly change will happen, but in between you have to be very consistent, and you need to be very determined about it कि नहीं ओके उनको बुरा भी ना लगे पर आपको आपका करना है. ऐसा इन बिटवीन का कुछ वे आपको ढूंढना पड़ता है, एंड यू नीड टू वेरी कंसिस्टेंट अबाउट इट, वरना आपने छोड़ दिया तो फिर वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है. Maybe, like, just make them a part of what you're doing, and maybe slowly and steadily they'll start Yes. understanding. And So I will share one my own experience कि कैसे change लोग हो जाते हैं without telling them. तो since many last year मैं कभी birthday होता है या कुछ भी anniversary होती है, तो I don't buy chocolates or any ice cream for my colleagues या friends. I usually what I do, I buy fruits एंड उनको ले. तो इनिशियली मैंने एक बार मेरे हस्बैंड को बोला, बट ही वाज लाइक अरे कोई ऐसा नहीं देता है, राइट? तो मुझे तो मैं वही चॉकलेट्स ही ले जाऊंगा एंड आइसक्रीम. आई वाज लाइक ओके फाइन, इट्स हिज चॉइस, उनको जो करना है करो. फिर फिर जैसे जैसे टाइम जाता गया, तो आफ्टर 3-4 years सडनली मैंने देखा कि उनका बर्थडे था, और एक दिन ही टुक द रीयूजेबल बैग एंड हमारे शॉप में एक शॉप है, वहाँ जाके ही बॉट द ऑर्गेनिक बनाना. तो
तो आई वाज लाइक इतने सारे क्यों, तो कि कल बर्थडे है ना तो ऑफिस में देना है. सो आई वाज वेरी हैप्पी इनसाइड कि समटाइम्स हम क्या बोलते हैं तो लोग थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि नहीं करना है, अब वो जो बोल रहे हो वो तो नहीं करना है. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हम बहुत पुश करते हैं ना तो लोगों को ऐसा होता है कि यार अब तो नहीं करना है, वो करना चाहते भी है फिर भी हम इतना पुश करते हैं, उनको तो लगता है कि अब नहीं करना है. सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल. मेरी लाइफ में मैंने ये फील किया है कि आई नेवर पुश हिम कि जैसा मैं कर रही हूँ वैसे ही आप करो, but slowly I see this kind of change in him, and this is how change happens. पता है पंक्ति, मुझे ना लाइक ये चीज़ हमेशा लगती है, लाइक इवन जो आपने एग्जांपल दिया कि लोगों को हमें एक कहते हैं ना एक मौका देना चाहिए कि वो समझें और एक्शन लें. लाइक अगर सपोज आपके पास बहुत इजी ऑप्शन था, आप उन्हें बोल सकते थे क्या नहीं या तो आप पागल हो, आपको नहीं पता, ये नहीं वो नहीं, बट वी शुड नॉट जस्ट ब्लेम देम बट मे बी अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम एंड देन गिव देम द टाइम टू ग्रो एंड टू इम्प्लीमेंट चेंजेस. So like what you did is amazing. Do you have any like more such, like give me some more incidents where initially people were not. So it was like this one example is like ये जैसे कि बायोएंजाइम, ये एक बनाना वाला मैंने जो एनिवर्सरी ऑन बर्थडे का था. फिर लाइक माय मॉम वाज वेरी इन अपोज कि ये क्यों क्लीनर क्यों बनाना है घर में, वी आर इजीली गेट दोज बाय वन गेट वन cleaners from any shop and क्यों cleaners बनाना है. and I was like मुझे बनाना है, I'll do it, है ना. but when जब मैं अभी फिर पहले small scale पे बनाती थी, अब मैं थोड़ा bulk में बनाती हूँ because now every cleaner in my house is only I have only one cleaner which is bioenzyme and I use it everywhere. so now when she sees कि यार इसने 4-5 साल हो गए she is not buying any cleaners, तो अभी slowly कभी कभी मुझे बोलती है कि वो मुझे तुम्हारा वो जो बनाते हो वो देना ना. so it happened. so now she is like कि नहीं यार people, because I started taking workshops and now she is also on social media, तो उसको अभी पता चलता है कि यार नो वो अकेली ऐसी पागल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं कि they are using it. तो अभी ही 3-4 months back I'm making bioenzyme since last 4 years, but अभी जब मैंने वर्कशॉप किया ना तो she was like कि कोई आता है वर्कशॉप में. I was like नहीं मम्मी, more than 50% has registered and they are keen to learn the bioenzyme and they want to start the journey. and she was like यार सच में लोग change चाहते हैं, they are using it. तो अभी ही before 4-5 days when she came to my house कि अरे वो मुझे देना ना जिसका वर्कशॉप था. so slowly ये change आता है. we need to be very determined and consistent about it. and सबसे ज़्यादा main important point मुझे ये लगता है कि आपकी whenever it's not only related to sustainability, कभी भी लाइफ में आपकी जो thought process है आपको किसी पे थोपनी नहीं चाहिए. when you do it like नहीं ये करना ही है, आप जो कर रहे हो वो गलत है, ऐसा तो कोई करता है, when you talk like this तो लोगों को और वो रिबल हो जाते हैं कि अब तो करना ही नहीं है. Agreed. So it's a process. Slowly you need to be be calm, you need to be very determined towards what you are doing, and slowly people will understand and slowly people will follow मेरे it. साथ भी ऐसा हुआ था. लाइक जब 2018-2019 में आई वाज लाइक अबाउट टू डू माय मास्टर्स, तो उस टाइम पे आई वाज डूइंग जेनेटिक काउंसलिंग एंड आई वाज ऑल सेट कि जेनेटिक काउंसलिंग ही करनी है. बट लाइक आई वेंट टू लंदन एंड वहाँ जाके मतलब आई वाज इंट्रोड्यूस टू क्लाइमेट एक्शन, स्टोरी टेलिंग, और लाइक आई लव टॉकिंग टू पीपल. तो आई वाज लाइक कि ठीक है, आई वांट टू डू क्लाइमेट चेंज में मास्टर्स, एंड एवरीवन गॉट की व्हाई शी सेड टू लाइक इसको अपनी लाइफ के ऊपर बात करनी है, क्यों इसे क्लाइमेट चेंज करना है कोई. क्योंकि उस टाइम पे लाइक दीज टॉपिक्स वर स्टिल वन talk much, and I still remember that I was like मुझे तो यही करना है, but ठीक है, like they are not understanding, maybe with time they will understand. and in like every newspaper article पंक्ति, I still remember that time, कहीं पर भी मुझे climate change का नाम दिख जाता, I used to screenshot it and send it to back to them on WhatsApp कि देखो climate change का नाम यहाँ पर है, it's a legit thing and I want to work on it. and today they are so happy and they feel so proud. like I think मेरे इंस्टाग्राम पे कहीं पर मेरी मम्मी सबसे पहले जाके वही सारी स्टोरीज लाइक करती है. वो हर जगह उनका रोज मैसेज आता है कि आज का स्टेटस नहीं आया, मुझे व्हाट्सएप पे डालना है. Yes. So
we need to happens. be patient and trust our loved ones. Okay, slowly, they will understand what we are doing, and And slowly it they will happens. follow Like, for the example, path. like what happened with me was that when we used to attend family functions, people used to ask, "Oh, what is she doing?" My dad used to be like, "कि अच्छा बता दे नहीं क्या करती है." And now, like, he'll explain everything to them himself. कि okay, ऐसे कुछ कर. So I agree with what you're saying. And what the point you mentioned कि repulsion नहीं. With love, with care, with understanding, move forward. And I also see Pankti कि आप अपनी daughter को भी like you're also inculcating So all she these is very habits. अभी भी ऐसा है कि I never taught her कि ये ऐसा ही करना है, ऐसे ही करना है ना. But she is observing me. She is seeing कि मम्मा ये सब कर रही है, so it's her responsibility and it is part of her life. मतलब it is nothing different. What we are not doing something different, क्योंकि this is the beauty of being sustainable. कि composting, bioenzyme, वो इनिशियली आपको टास्क लगता है, बट व्हेन आपको आपकी लाइफ में वो रूटीन में सेट हो जाएगा. जस्ट लाइक वी टेक अ बाथ, जस्ट लाइक वी ब्रश अवर टीथ, तो दे आर पार्ट ऑफ लाइफ. कि जैसे हम खाना खाते हैं तो वेस्ट को भी कंपोस्ट करना इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो स्लोली अभी उसके लिए ये नॉर्मल चीज है. शी इज लाइक नॉट कि कुछ डिफरेंट कर रही हूँ. जैसे प्लांटिंग करना, प्लांट्स को पानी देना, और कंपोस्टिंग करना, बायो एंजाइम को बनाना, उसको 3 months में एक बार उसको मतलब बना के रखना. सो इट इज पार्ट ऑफ हर लाइफ. इट इज पार्ट ऑफ, उसके लिए एक्टिविटी है ये जो हम एज अ फैमिली सब एंजॉय करते हैं. सो समटाइम्स मुझे फील होता है कि एक्चुअली बच्चों को बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि यार ये वर्कशॉप्स कराओ बच्चों के लिए, और ये कराओ वो कराओ, बट सबसे ज्यादा जो बच्चे सीखते हैं घर से, क्योंकि बहुत सारे अभी स्कूल में ये एनवायरमेंट टॉपिक है, बहुत इंट्रोड्यूस हो रहा है. बट द थिंग इज कि उनको पढ़ाते तो है कि भाई हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए, हमें प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए. बट श्वेता, एक ऐसे में चीज में बिलीव करती हूँ कि जैसे कि आप बच्चों को घर में जो सिखाते हो उनका उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उनके इनिशियल ईयर्स में. लाइक सी, मैं उस पे शाउट करके बोलती हूँ उस पे, और मैं उसको बोलती हूँ कि तुम चिल्ला के मत बोलना, तुम स्लो वॉइस में बोलो, तो शी विल नेवर अंडरस्टैंड. बिकॉज उसको पता है कि यार मम्मी ऐसा बोलती है और मुझे भी ऐसे ही बोलना है. बिकॉज ही नो के यार, शी नो के मम्मा जैसा करती है वो सही मुझे करना है. सो व्हेन यू डोंट प्रैक्टिस इट एट होम, तो स्कूल में इतना अच्छा इनिशिएटिव लेके बच्चों को पढ़ाना, इतने अच्छे प्रोग्राम्स रन करना का कोई वैल्यू नहीं है, राइट. वो स्कूल में पढ़ेंगे, फिर उनको पता है कि यार शाम को आके तो मम्मा हम लोग सारा पॉलिथीन में जाने देते. बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, दे ऑब्जर्व द थिंग. कि कल ही एक्चुअली ऐसा हुआ, वी वेंट टू अ फ्ली, और वहां पे भी ऑल ऑफ सडन हम चले गए थे कि जाए, और वहां पे उसको कुछ खाना था. एंड देन आई डिडंट बॉट माय कटलरी और समथिंग, तो वो कटलरी प्लास्टिक कटलरी, तो उसने घर आके मुझे बोला कि मम्मा तुम तो कहती हो प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए और तुमने ही वहां पे फेंका. सो सी, वी आर सो एंगेज, हम वहां पे उसके वाइब में इतने एंगेज, स्टिल शी ऑब्जर्व कि हमने ये प्लास्टिक का एक चम्मच फेंका. सो किड ऑब्जर्व सो मच कि भाई स्कूल में पढ़ा रहे कि प्लास्टिक नहीं फेंकना, पर घर आके तो हम फेंकते ही है. तो वी नीड टू प्रैक्टिस सच थिंग इन अवर डेली लाइफ कि बच्चों को एक लाइफ लेसन मिले, एंड विच इज वेरी नीडेड. उनका जब वो लोग जब बड़े होंगे, when they will be youngsters, तो I don't know how the situation will be. So for that better future, we need to teach them young, and how we can teach by improving ourselves, by doing better by ourselves. वरना हम उनको कहेंगे प्लांट उगाओ, but now then we don't care about plant, तो वो सिखाने का मतलब नहीं है. टू मेक देम टीच डिसिप्लिन, पहले एटलीस्ट हमें डिसिप्लिन लेना पड़ता है. उनको हम कहते हैं कि भाई मोबाइल मत देखो, तो उसके पहले हमें मोबाइल छोड़ना पड़ता है. तो टीच देम सस्टेनेबिलिटी, एटलीस्ट हमें तो पहले सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉलो करनी पड़ेगी. सो इट्स लाइक दैट. वो सीख के देखते हैं, उनको ऐसे वर्बली या कुछ लेक्चर्स या वर्कशॉप से नहीं सिखा सकती ये सब चीजें. I agree to that. And also, but I like the way you like, the way, the kind of things you're doing with her, like this has become the way of life for her. And apart from that, I also feel ki sustainable lifestyle, for example, be it growing your own food, composting, other things, they also give you so much time to spend as a family.
वी आर ऑलवेज क्रेविंग फॉर टाइम विद आवर लव्ड वंस, बट दीज एक्टिविटी आई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइक यू गेट टू स्पेंड दैट टाइम, दैट बॉन्डिंग, दैट एवरीथिंग हैपेंस ओवर Yes, because this thing are not materialistic thing, right? Every day you see some change in it. Because if someone asks you to visit the mall every day, आप थक जाओगे यार, नहीं जाना है, क्या है उसमें मोनोटोनी है ना. To visit a mall and have a food and just roam in a mall and do window shopping or shopping, it is a monotonous life. But when you compose the thing, every day you see उसके different stage होते हैं. You are seeing कि अच्छा कल तो ये एक ऑर्गेनिक मैटर था, नाउ इट इज इन द कंपोस्ट, या तो वो इन बिटवीन का स्टेज है. व्हेन यू ग्रो प्लांट्स और व्हेन यू केयर फॉर प्लांट्स, तो यू आर ऑब्जर्विंग डिफरेंट थिंग्स एवरी डे. व्हेन यू आर मेकिंग बायो एंजाइम, तो उसका हर स्टेप अलग है. सो वो कभी आपके लिए मोनोटोनी नहीं बनेगा. उसमें अलग अलग चैलेंजेस है, अलग अलग काम है, उसका अपना एक फील है, सेटिस्फाइंग फीलिंग है उसमें कि अच्छा हमने एंड ऑफ द डे कुछ प्रोडक्टिव किया. सो ये सारी चीजें हमें बहुत ही मतलब सेटिस्फैक्शन फील कराती है, बिकॉज इट इज नॉट मोनोटोनस ये करने में. एंड वी आर कनेक्टिंग विद द सॉइल, वी आर कनेक्टिंग विद द नेचर. सो यही एक चीज है कि बच्चों को when they are growing, so you need to make them connect with the nature, because they learn a lot from it. Also, Pankti, like ऐसी कोई चीज़ें, like for example, if someone is on his or her sustainable journey या कोई start करने वाला है, तो ऐसे कोई challenges जो आपको लगता है कि मतलब वो शायद face करे और आप बताना चाहोगे उन्हें कि ये सब होने वाला है, तो just be at it, or like, and like we talked about parents, we talk about family and other people, but what are other challenges that they might face on this way? Yes, the first thing when when you will start your sustainability journey, then you will feel so overwhelmed कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. क्योंकि when we start, we research a lot, we go through the Instagram pages of different people, and they are already, मैं 5 साल से कर रही हूँ, तो मेरा एक जर्नी अभी एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया है, या तो मैं बहुत सारा कुछ कर रही हूँ, है ना. इनिशियली बिफोर 5 years बैक मैं इतना कुछ नहीं कर, मैंने भी बहुत मल्टीपल फेलियर आए हैं कंपोस्टिंग में, बायो एंजाइम फेंकना पड़ा है, स्मेल आया है. सो वो सब मैं शायद डॉक्यूमेंट नहीं करूंगी, है ना. सो व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी, देन डोंट फील ओवरवेल्म कि ये करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. टेक वन स्टेप एट अ टाइम कि अच्छा ठीक है, स्टार्ट विद दिस, फिर उसको थोड़ी देर करो. देन ओके, व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद इट, व्हेन इट बिकेम पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, फिर दूसरा कोई स्टेप लो. देन मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, फिर तीसरा स्टेप लो. सो डोंट रश टू कि यार कल से बिल्कुल मुझे वीगन हो जाना है ना. एकदम ऐसे एक्सट्रीम लेवल के स्टेप डोंट टेक. Slowly to take your bottles with you, to avoid the single use plastic, bring your own cutleries, right, bring your own containers, to find the zero waste store in your nearby area. Like जैसे आपको लगता है कि भाई दाल चावल तो हम रोज खाते हैं और दे आर अवर स्टेपल फूड, तो आपके जो स्टेपल फूड है, इंडियन स्टेपल फूड, तो वो कहाँ से आपको जीरो वेस्ट मिल सकते हैं. सो यू कैन अवॉइड द प्लास्टिक. तो स्लोली अपना लेवल एकदम एक्सट्रीम लेवल का जो स्टेप है कि यार अभी कल से वीगन बन जाना है, वो स्टेप मत लीजिए, क्योंकि उसमें देयर आर द चांसेस टू फेल और पूरा सब बंद करने का चांसेस ज्यादा है. तो इजी और स्मॉल स्टेप है, उसको पहले आप इनकॉर्पोरेट करिए, मेक देम पार्ट ऑफ योर लाइफ, और फिर स्लोली आप जो माइलस्टोन है वो उसको रीच करते जाइए. जस्ट लाइक देन आफ्टर, व्हेन यू आर एबल टू फाइंड द जीरो वेस्ट स्टोर, व्हेन यू आर एबल टू फाइंड द रिफ्यूज, रिड्यूस एंड रिफ्यूज द प्लास्टिक कंजप्शन, है ना. फर्स्ट फोकस आप ऐसा करिए कि whenever you start your sustainability journey, तो फर्स्ट 2 hour पे फोकस करिए पहले कि हाउ यू कैन रिफ्यूज एंड रिड्यूस योर प्लास्टिक, राइट. तो 1-2 months आप उसी पे फोकस करिए कि कैसे आप अपना प्लास्टिक कंजप्शन रिफ्यूज एंड रिड्यूस कर सकते हैं. देन स्लोली गो टू द composting, and slowly go to the the natural cleaner, and then slowly find start segregating your waste and then send it to the recycling. So slowly one step at a time will be helpful, rather than feeling overwhelmed and doing everything all together. So that is the way how I started, and the whoever is listening and whoever need the guidance, we all should start like this. अंकित, जब आपने बोला कि इसे आपने इनिशियली आपको मल्टीपल फेलियर्स आए, जैसे बायो एंजाइम से स्मेल आई, आपको उसको फेंकना पड़ा, वो
क्या कुछ लाइक शेयर, कुछ फेलियर्स शेयर करो हमारे साथ जो शायद लोगों को भी आ सकते हैं। सो सबसे पहले तो जब मैंने कंपोस्ट किया तो आई हैड नो आइडिया कि कंपोस्टिंग कैसे करना है। तो मैंने उसमें बिल्कुल उसमें होल्स वगैरह नहीं दिए, बिन एकदम क्लोज बिन थी, तो इट स्टार्टेड स्मेलिंग। तो सबसे पहला फेलियर मेरा यही था। एंड माय हस्बैंड वाज लाइक, मैंने बोला था ना कि नहीं करना है ये सब। एंड आई वाज लाइक नहीं यार, कुछ और थोड़ा और देखते हैं। एट द टाइम मैं इंस्टाग्राम या ऐसा कुछ पे नहीं थी, तो भी मुझे पता नहीं था कि कोई अकाउंट है जिसको मैं फॉलो कर सकती हूँ और गाइडेंस ले सकती हूँ। बट स्लोली स्लोली सारे इंटरनेट पे कुछ कुछ देख के, और इवन तो मुझे ब्रांड्स भी नहीं पता थी कि अच्छा कंपोस्टर की ब्रांड्स भी होती होगी कोई। तो आई स्लोली लर्न एवरीथिंग फ्रॉम इंटरनेट, एंड देन मेड माई ओन बिन के जिसमें होल वगैरह ड्रिल करके कंपोस्ट बिन बनाया। सो यस, that was my failure, but still I be determined about it कि नहीं मुझे try करना ही है। And after 1 year of trial and error, I harvested my first compost after 1 year or 7 to 8 months. So till 7 to 8 months you need to be very determined about it. And the same thing happens when I switched to natural shampoo, the shampoo which is homemade, and I use amla, arita and shikakai, and it was like बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेन करते कि यार आपने बोला वो तो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, इवन तो मेरे लिए भी नहीं वर्क कर रहा था, राइट? बट देन यू नीड टू बी लिटिल बिट माइंडफुल एंड लिटिल बिट डिटरमाइंड कि नहीं मुझे करना ही है। देन यू विल फाइंड अ वे कि अच्छा इसमें लेट्स चेंज द रेशियो एंड ऐड समथिंग, और कुछ इसमें से निकाल दो या ऐड करो। सो लाइक इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड लिटिल बिट ऑफ माइंडफुलनेस कि आपने लास्ट टाइम क्या रॉन्ग किया था, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। तो सस्टेनेबिलिटी जर्नी में भी ऐसा ही है कि जैसे कभी मुझे वो लोग बताते हैं कि हमारा ऐसा नहीं हुआ, बट मेरा जो उनको मैं सॉल्यूशन जो दूंगी या तो कुछ उनको बताऊंगी, बट आई डोंट नो कि वो वर्क करेगा कि नहीं, बिकॉज मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या गलती की। यू ओनली नो कि आपने क्या गलती किया था, राइट? बायो एंजाइम सब लोगों ने वही रेशियो से बनाया, 3 डिफरेंट पीपल मेड द बायो एंजाइम विद द सेम रेशियो इन द सेम कंटेनर, बट स्टिल तीनों का रिजल्ट गलत मतलब तीनों में से एक एक का अलग हो सकता है, बिकॉज इट डिपेंड अ लॉट on the temperature, it depend a lot on how much you have given the time to open it, or you have kept it in proper place or not. So you only can judge your journey, and you only can improve by learning from your own mistake. नहीं, डेफिनेटली। सो अब आप ये बताओ कि अगर किसी के पास लाइक कंपोस्टर लाइक कोई नहीं खरीद सकता है फॉर एग्जांपल, तो हम अपना खुद का कंपोस्ट बिन कैसे बना सकते हैं? Yes, so it's very easy कि आपके पास अगर you have a टेराकोटा का पॉट है, या आपके पास ओल्ड बाल्टी है, द एशियन पेंट का बाल्टी जो एवरी इंडियन हाउस होल्ड में तो मिलता ही है, तो यू कैन यूज इट, यू कैन ड्रिल सम होल्स इनटू इट, एंड देन यू कैन यूज इट एज अ कंपोस्ट. So like can I suppose for example tell me that can I compost without buying anything from outside? Yes, yes, it is very much possible. And that's what I am teaching people on my workshops and all, that okay, it's not sometimes na we keep waiting कि अच्छा ये खरीदेंगे ना फिर शुरू करते हैं, अरे मेरा bamboo brush आएगा ना फिर I will start my journey, I need to replace everything, मेरा प्लास्टिक के सारे कंटेनर मुझे निकाल के ग्लास कंटेनर का जब बजट होगा ना, then I will start my journey. So sometimes हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए वेट नहीं करना होता है. It's like आप शुरू करो, and slowly you will learn, and you don't need to buy anything to start any sustainability journey. फिर जैसे कि आप एक लेवल पे पहुंच गए, and then you need to move, or you need more अच्छा option, then you can obviously switch to different option available in the market. It's not like they are bad companies, and sustainable brand, they are the small business brand, and they are very impactful, and they are doing so amazing thing for our environment. So obviously you should support it, you should buy from them whenever you need to buy. So yes, obviously it depends कि आप एक पहले milestone तो reach कर लो से. The first step is not to replace everything. First step is to not buy anything and use what you have. So sustainability का thumb rule यही है कि use what you have. It's not like कि अरे composter आएगा फिर जर्नी शुरू करेंगे, अरे यार ग्लास बोटल्स का बजट आएगा फिर शुरू करेंगे. It's not like that. आपके पास जो है वही यूज करके आप एक साल बिना कुछ बाय किए अपना काम चलाओ, तो इट इज ऑल्सो अ सस्टेनेबल थिंग.
सो पंक्ति, माई लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी लाइक, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि जब आप लाइक बिल्कुल ऐसा अकेले हो, कुछ सोच रहे हो कि मैं कहाँ से कहाँ आई हूँ, या फिर समटाइम्स योर आईज जस्ट गेट नम कि यार मतलब तो वो फीलिंग, वो क्या होती है फीलिंग आपके लिए, वो क्या फील होता है आपको उस टाइम पे कि मतलब मैंने क्या करा है, या फिर वो हैप्पीनेस जो अंदर से आती है वो किस चीज़ के लिए आती है? मैं बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ होता है, एंड मुझे लगता है कि आपके साथ हो। आई स्टिल आपने बोला तो ये देखिए मुझे गूज़बम्प्स हो गए। तो इट हैपेंस मैंने जब मेरा जर्नी शुरू किया था इंस्टाग्राम जर्नी, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि इंस्टाग्राम को कैसे, मतलब जस्ट वो कभी-कभी फ़ोटो अपलोड कर दिए होंगे, बट इंस्टाग्राम कैसे वर्क करता है। इवन दो रील आई तो भी मुझे नहीं पता था कि रील में कैसे होता है, क्या होता है। बट आई लर्न अ लॉट बिकॉज़ माय इंटेंशन वाज़ टू रीच मोर पीपल। तो मैंने लर्न किया कि अगर ज़्यादा लोगों को रीच करना है देन यू नीड to break this algorithm, you need to learn the new thing. So in my whole journey I read, not read, but I analyze a lot. I analyze a lot about the things, how things are going, how people are sharing my content, what type of content people are liking. So it's like कि content creation का पूरा journey है जो मैंने कभी सोचा नहीं था, राइट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मैं करूँगी। और मोर देन कंटेंट क्रिएशन, जो लोग मुझे फीडबैक देते हैं कि आपकी वजह से व्हेन पीपल टैग मी इन देयर कंपोस्ट फोटो, हो गया अच्छा इनकी वजह से हमने शुरू किया, या वो व्हेन दे आर गोइंग आउट एंड दे आर ब्रिंगिंग देयर ओन कटलरी एंड पीपल आर सेइंग ओके इनकी वजह से वी हैव स्टार्टेड दिस। सो इट्स सो प्राउड मोमेंट दैट मैंने एक मोमेंट पे ऐसा सोचा था जब मैंने स्टार्टेड कि यार मैं करूँ कि नहीं करूँ, यार लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। तो आफ्टर 2 years जब मैं ये अपनी जर्नी को देखती हूँ तो आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जनरली हम बहुत स्केप्टिकल होते हैं ना कि ये स्टेप ले कि नहीं ले, कोई क्या कहेगा, मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं, ये मेरे लायक काम है कि नहीं, है ना। हम सोचते हैं कि ये सब हमारे लायक है कि नहीं है। बट what I learned is Instagram or any social media is so powerful tool, and you need to, this is the time where you need to use this kind of powerful tool to spread this kind of powerful message, like climate change or sustainability and so anyway we need to use it, and we need to take our content to the next level, so it will reach to more people, and we will be able to inspire more people, and not only inspire but we inspire people to take that one step, which they might be thinking यार हम कभी ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं, you're right पंक्ति, एंड लाइक थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू डू, थैंक यू फॉर स्टार्टिंग आउट उस दिन पहला स्टेप लेने के लिए, क्योंकि आपके एग्जैक्टली दैट इज व्हाट मैं जब भी सोचती हूँ तब मैं यही सोचती हूँ कि वो जब मैंने सोचा था नहीं यार छोड़ो, क्या लोगों को क्या है, वो तो वैसे भी बोलनी ही है कुछ, लेट्स स्टार्ट। तो दैट वन मोमेंट, दैट वन पुश फ्रॉम माई सेल्फ, it is creating a difference. I want more such push from myself. Kabhi kabhi hota hai when you are busy and sometimes you are low and you are occupied with so many things, but yes, you still need to push yourself because this kind of thoughts need to be reached to many. yes. तो होप आई एक वो पुश अकेला काफी नहीं है मुझे, और मुझको पुश करना है बहुत सारी चीजों के लिए अभी। और अब आपके पास उसके लिए आपकी कम्युनिटी है, आपके पास उसके लिए लोग हैं जो जेन्युइनली आपके साथ खड़े हैं, एंड व्हेनेवर लाइक आई एम सीइंग दिस, लाइक व्हेनेवर यू फील डाउन, लाइक इन एनी वे इफ आई कैन हेल्प यू, फील फ्री टू रीच आउट। ये सो दैट इज व्हाट जब सस्टेनेबिलिटी की जर्नी होती है ना, तो ये बहुत होता है कि यार मैं अकेली कर रही हूँ, आप किसी से शेयर नहीं कर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी। बिकॉज कभी कभी मैं मीम शेयर करती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि यार हम बहुत रिलेट कर पा रहे हैं, और इट फील लाइक मैंने बहुत, मतलब इवन दो इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट आई डोंट टेक इट एज कि मेरे फॉलोअर्स है, दे आर माई फैमिली। तो बहुत सारे लोग ऐसे जब रिप्लाई बैक करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं पूरी वेंट हो गई किसी से बिना बात किए। तो दिस इज द पावर ऑफ द ऑनलाइन कम्युनिटी वी। और एक चीज़, लास्ट चीज़ आप ये बताओ कि जैसे कुछ भी आपकी ऐसा कोई एक मोमेंट आपकी जर्नी में रहा हो जो आपको लगा हो कि वो पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए आपको बहुत करेज लगा अंदर से।
एक्चुअली दूसरा यही था कि जब करेज मुझे यही लगा कि आई डिडंट नो अबाउट इंस्टाग्राम रील्स वगैरह करना, क्योंकि ये वीडियो शूटिंग और ऐसे करना, क्रिएट करना कि लोग एंगेज हो पाए, तो वो मेरे लिए बहुत ऐसा टास्क था कि यार मैंने कभी किया नहीं था, है ना। रील बनाना, क्या रील बनाना, शूटिंग करना। तो मैंने बहुत अपना करेज गैदर किया कि नहीं यार, चलो करते हैं ना, एक बार तो कभी करना है, ट्राई करते करके तो देखे। तो ये रो रील वगैरह और ये सब ट्राई करने में मुझे बहुत करेज लगा कि यार नहीं यार, करना तो पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता मतलब समहाउ मैंने सब देखा किया, तो मुझे पता चला कि यार रील के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है, अगर आपको और ज़्यादा लार्जर कम्युनिटी से कांटेक्ट करना है या इंटरेक्शन करना है या रीच आउट करना है तो। सो इट वाज वेरी करेजियस थिंग। और दूसरा कि व्हेन आई वांटेड टू शेयर द थिंग्स अबाउट, मतलब मैंने जब बहुत पहले मेरी स्टोरीज पे अबाउट मेंस्ट्रुएशन और द इको फ्रेंडली कॉन्ट्रासेप्टिव, इन सब पे जब बात किया, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी करेजियस थिंग फॉर मी, क्योंकि कलीग्स भी बहुत सारे आपके होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। तो तब तो ऐसा नहीं था कि बहुत बिगर कम्युनिटी थी, स्मॉल कम्युनिटी थी, बहुत सारे आपके लोग ऐसे होते हैं कि आपके फ्रेंड्स, कलीग्स या फैमिली मेंबर्स होते हैं। बट समटाइम्स फिर मुझे लगा कि वी नीड टू नॉर्मलाइज दिस। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में मैं बात करती थी, तो आई वॉज लाइक वी नीड टू नॉर्मलाइज इट, है ना। मेरे लिए वो करेज था कि यार करूँ नहीं करूँ, करेज करूँ नहीं करूँ, बट देन आई वॉज लाइक नहीं यार, we need to talk about it, we need to normalize it, because I used to talk on breastfeeding, how to use cup and all. So कभी कभी आपको लगता है कि आप बोलो नहीं बोलो, लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, बट फिर बाद में जो जैसे कलीग मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि मेरे एक कलीग ने बोला कि यार तुम पंक्ति से बात करो कैसे मेंस्ट्रुअल कप यूज करना है। तो ऐसे भी होते हैं सब, हम एक्चुअली एकदम वर्स्ट लेवल की चीजें सोचते हैं कि यार वो लोग क्या हमें जज करेंगे, बट वो ऐसा होता नहीं है, हमेशा सब चीजें अच्छे के लिए। नाउ पीपल आर वेरी ओपन माइंडेड, चीजों को, कंटेंट को बहुत अच्छे से लेते हैं। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो मेल फ्रेंड्स थे, उनकी वाइफ ने मुझे रीच आउट किया कि यार पंक्ति बताओ ना, कैसे तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, कौन सा कप यूज करें एंड ऑल। सो यू नेवर नो कि आपके वजह से कौन इंस्पायर हो जाए, कौन एक स्टेप ले। सो डोंट फील कि ये बोलना मुझे चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यू आर थिंकिंग कि नहीं, दिस इज अ नीड ऑफ एन आवर एंड आई नीड टू स्प्रेड इट, देन जस्ट स्पीक अबाउट इट, गेट द करेज एंड Thank you, Pankti, for gathering the courage and doing it. And thank you for doing what you do. And thank you for being with us today. Yeah, thank you. do. Yeah, And thank you. lovely community you have created, Shweta. And I wish in future we all can meet in some, where you live. Delhi. Delhi, okay. So, I traveled to Delhi recently for that award function, and at the time I was, just thinking कि in future कभी भी ऐसा कोई award function या gathering हो जहाँ पे पूरा जो हम sustainable community है over Instagram, हम सब लोग एक जगह मिल पाए और एक दूसरे के view share कर पाए, और कहीं से हमें recognition मिले, और the beautiful community we are creating. So hope we all can meet, we both can meet personally, and we all a sustainable community on Instagram can No, meet definitely, somewhere definitely, someday. definitely. And like we are working like something on those lines. So hopefully, if it gets structuralized in it, see where it goes. Goes. Perfect. It will be a very beautiful Yes. thing. Thank you so much, Pankti. Thank you for being with us Thank you for today. inviting me, Shweta.